Okay, welcome my dear students. Welcome to the topic ionic equilibrium again. We were talking about classification of acids and bases. Before that we had seen electrolytes, stronger electrolyte, weaker electrolyte. Then we had seen strong acids, strong bases, salts also, and after that we had also seen degree of dissociation denoted by alpha. Now we will move to the next aspect, that is classification of acids and bases. The first theory which defines acids and bases is Arrhenius theory. What this theory says: when any substance dissolved in water gives free H plus ion is an acid. When any substance dissolved in water gives free H plus ion is an acid. Base के लिए when any substance which when dissolved in water gives free OH negative ions is a base. So acids gives free H plus ions in water, and bases gives free OH negative ions in water. More it has added acids which gives free H plus ions and bases gives free OH negative ion. The more it has been added to this definition is acids possess hydrogen and gives free H plus ion. Bases possess hydroxyl group, OH negative ion, possess OH negative ions and gives free OH negative ion. That means acids are those substances which have hydrogen in their molecule, which have hydrogen and gives free H plus ions, on dissolving in water. और इसके एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, acetic acid, formic acid, benzoic acid, all these will give free H plus ions when they are dissolved in water. जैसे हम रिएक्शन लिखें यहाँ पर HCl when dissolved in water, तो यहाँ water is aqueous medium लिखते हैं, gives H positive ion aqueous plus Cl negative ion aqueous. So acids are those substances which possess or which have hydrogen ion and which gives free H plus ions when dissolved in water. Arrhenius theory. फ्री H प्लस आयन यानी ये क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में होता क्या है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइड्रोजन में ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और उसके आउटसाइड में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. अब आपने इसको हाइड्रोजन आयन में अगर कन्वर्ट किया तो क्या आपने उड़ा दिया इसमें से, इलेक्ट्रॉन गया, तो अब ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया. करेक्ट है, जिस विच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, acids are those substances, Arrhenius theory,
Arrhenius theory. Acids are those substances which possess hydrogen and gives free H plus ions on dissolving in water, and examples are various example we have which gives free H plus ions. So this is Arrhenius theory. Arrhenius theory for acid. Now Arrhenius theory for base. Arrhenius theory, bases are those substances which possess hydroxyl group and gives free OH negative ion on dissolving in water, dissolving in water, correct है? An example we know, sodium hydroxide, potassium hydroxide, we can have ammonium hydroxide, we can have cupric hydroxide, like this. So when they are dissolved in water, correct है? In aqueous medium, sodium hydroxide will give sodium ion in aqueous medium and hydroxyl ion in aqueous medium. So this is what Arrhenius theory for acids and bases. अब चलो इसके थोड़े कुछ ड्रॉबैक्स भी समझ लेते हैं, है ना? What are the drawbacks or shortcomings of Arrhenius theory? Arrhenius theory का सबसे पहला ड्रॉबैक है कि वो अप्लीकेबल है सिर्फ एक्वस मीडियम में. Acid gives free H plus ion when dissolved in water. Bases gives OH negative ion when dissolved in water. That means the solvent water is the compulsory requirement of it. बाकी solvent के बारे में कोई explanation नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या कहा है कि water में H plus जो देगा वो acid, water में जो OH देगा वो base. तो इसका पहला drawback क्या है? Applicable only for aqueous medium. Non-aqueous medium का कोई explanation नहीं. Non-aqueous medium, no explanation was given for non-aqueous medium. First drawback. Second drawback. और क्या बोलता है? मैंने ये जो possess जो लिखा है ये भी एक इसके ड्रॉबैक में आएगा, है ना? क्योंकि डेफिनेशन ही वैसा बोला है उसने. Those substances which possess hydrogen in their molecule and gives free H plus ions will be an acid, or bases which possess OH negative ion and gives free OH negative ion which possess hydroxyl group and gives free OH negative ion are bases. अब जैसे यहाँ पर एक अमोनिया को कंसिडर किया, NH3. Ammonia is a base. But what happens here? Its basic nature cannot be explained because it does not possess OH negative ion. So basic nature of ammonia not explained, है ना? Basic nature not explained according to this theory. अब उसके हिसाब से एक और एग्जांपल ये कुछ इस तरह से देखो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे
तो आयोनाइजेशन कैसा होगा? हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन, करेक्ट है। इट गिव्स H प्लस आयन, लेकिन ये तो बेस है, हमें पता है सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस। इट ऑल्सो गिव्स Na positive ion, H positive ion. So this is neither Arrhenius acid nor Arrhenius base. So it fails to explain such molecules which does not possess OH group, which does not possess H plus or hydrogen in their molecule. हो गया, तो ये दो ड्रॉबैक हो गए। इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन, इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन basic nature of metal oxides and hydroxides, oxides and hydroxides, metal oxides and hydroxides का बेसिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एक और ड्रॉबैक यहाँ देखेंगे, जब आपने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया है ना, हमने एक्वस लिखा था, तो ये क्या दे रहा था? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब ये H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कभी नॉर्मल केस में ऐसा मिलता ही नहीं है। क्या होता है? प्रोटॉन कंबाइंस विथ वाटर, दिस प्रोटॉन कंबाइंस विथ वाटर एंड अवेलेबल एज हाइड्रोनियम आयन। ये भी एक ड्रॉबैक बन रहा है उसका। इट हैज एक्सप्लेन ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री H प्लस आयन, बट इन फैक्ट H प्लस आयन एग्जिस्ट ही नहीं करते। H प्लस आयन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो किस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, कौन से रूप में, स्वरूप में अवेलेबल है? वो हाइड्रोनियम आयन में। तो इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सो दिस इज द अदर ड्रॉबैक ऑफ इट। सो फोर्थ ड्रॉबैक, no explanation regarding hydronium ion. So these are the drawback, but still we can say this is a very good method or theory which initially defines acids and bases. उस वक्त, उस समय के लिए ये डेफिनेशन एकदम अप्रोप्रिएट थी। उतने रिसर्च नहीं हो रहे थे, तो क्या हो गया था कि ये सब उस वक्त के साइंटिस्ट मानते थे कि जो हाइड्रोजन कंटेनिंग रहेगा और जो फ्री H प्लस आयन देगा वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, तो वो एसिड। बेसिस which possess hydroxyl group in their molecule and on dissolving in water gives free OH negative ion will be a base. But further studies suggest that ammonia NH3 is a base which was not explained by Arrhenius theory. और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? It is applicable only for aqueous medium. तो नॉन एक्वस मीडियम का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। फिर फेल्स टू एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। हमको पता है कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेसिक नेचर है। लेकिन Arrhenius theory has not explained anything related to it. It has also not explained the formation of hydronium ion. वो सिर्फ हाइड्रोजन पे आके रुक गए। तो ये ड्रॉबैक Arrhenius theory का और Arrhenius theory की दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर Arrhenius theory हो गया पूरा हमारे लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। Arrhenius theory is over and now the second theory is Bronsted-Lowry theory.
Bronsted and Lowry theory. Now, to remember this theory, ब्रैकेट में हम लिख के रख लेते हैं प्रोटॉनिक थ्योरी. जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है तो इस थ्योरी को हम याद रखेंगे एज ए प्रोटॉनिक थ्योरी. करेक्ट, प्रोटॉनिक थ्योरी. कि प्रोटॉनिक थ्योरी में क्या लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने प्रोटॉन को यूज किया. व्हाट इट सेज, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर. यानी प्रोटॉन रहता होगा इसीलिए डोनेट करते होंगे. और बेस क्या है, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. दे आर डेफिशिएंट, they will accept the proton acceptor, donor and acceptor. So acids are proton donor and bases are proton acceptor. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर एसिड्स के लिए ये HCl लिया हमने और इसके साथ ये वाटर को रिएक्ट किया. अब वाटर पे क्या है, हमको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता. न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग रिएजेंट. तो यहां से पॉजिटिव चार्ज क्या मिल रहा है बच्चा, हमको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा हाइड्रोजन. सो दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय वाटर. व्हेन वाटर एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, ये वाटर H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन और HCl काई में कन्वर्ट हो गया Cl-1 में. तो ये एसिड है बिकॉज इट हैज डोनेट इट्स प्रोटॉन एंड विल एक्ट एज एन एसिड. दिस इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी. बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. अब बेसिस के एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं अमोनिया NH3. करेक्ट, NH3 अमोनिया. अमोनिया पे लोन पेयर है, ये हमने पढ़ा है. अब अगर ये अमोनिया को आप एक प्रोटॉन से रिएक्ट करते हैं, प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इफ इट कम्स. तो ये अमोनिया की लोन पेयर तो प्रोटॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना. तो इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड गेट कन्वर्टेड टू अमोनियम आयन. करेक्ट. तो दिस हैज एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन एंड दिस विल एक्ट एज अ बेस. So, Bronsted and Lowry theory says that bases are proton acceptor. Ammonia is a base. It has accepted a proton and will get converted to ammonium ion. Similarly, acid HCl, it donates proton accepted by water molecule and this will, as it is donating acid, will act as a donating a proton will act as an acid. So this is the definition for acids and bases according to Lowry and Bronsted theory. Now next point, हम इसी में क्या करते हैं, अब अगर ये एसिड है और ये बेस है तो ये दोनों को ऐड करके एक थर्ड रिएक्शन बना लेते हैं हम. तो एक थर्ड रिएक्शन बनाते हैं HCl प्लस NH3. चलो भाई, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड और बेस की रिएक्शन कर देते हैं. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी के हिसाब से क्या है, दिस विल डोनेट प्रोटॉन एंड दिस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन. तो NH3 ने एक्सेप्ट किया, क्या बन गया वो, NH4 पॉजिटिव. HCl ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो वो क्या बच गया उसके पास,
Cl नेगेटिव आयन। तो ये हो गया आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, where HCl is an acid as it is capable of donating a proton, and NH3 is a base as it gains a proton and get converted to ammonium ion. So this is the second theory. Now इस थ्योरी में हमको दो नई चीजें पढ़नी है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। उसमें देखते हैं ये वाली रिएक्शन को फिर से। मैं ये HCl लिया और यहाँ पर अमोनिया से रिएक्ट कर दिया। प्रोडक्ट क्या मिल गया मुझे? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Cl negative. Now this is an acid. ये फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे हैं? This is an acid which has donated a proton to ammonia, and ammonia has accepted its proton, and this acid gets converted to chloride ion. तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बेस के जैसा हो जाएगा। तो एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया तो वो काय में कन्वर्ट हो गया? बेस में। सही है क्या? एसिड क्या है? HCl। बेस क्या मिला? Cl माइनस। तो ये Cl माइनस क्या हो गया? एसिड। आई एम सॉरी, Cl माइनस क्या हो गया? बेस हो गया। इस बेस को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, acid get converted to its own conjugate base. याद रखो सेंटेंस को, फिर से बोल रहा हूं। acid after donating its proton get converted to its conjugate base. अब इसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देखो। NH4 पॉजिटिव, इसके पास एडिशनल प्रोटॉन आ गया और ये Cl माइनस बेस है, ये आपके हिसाब से डेफिशिएंट इन प्रोटॉन है क्योंकि ये आया कहां से है? HCl से। तो ये Cl डेफिशिएंट इन प्रोटॉन है, ये रिच इन प्रोटॉन है। हेलो एवरीवन, ध्यान दे रहे हैं? नया कॉन्सेप्ट है, कैसे डेवलप हो रहा है देखते जाएंगे आप और अटेंटिव रहेंगे, लिखते भी जाएंगे साथ में, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो अपने को। रिच इन प्रोटॉन, रिच इन प्रोटॉन है। आफ्टर गेनिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl it becomes rich in proton. This is deficient in electron. See the reaction in a reverse direction. अब क्या होगा, है ना? मैं ये मिटा देता हूं, रिच और डेफिशिएंट। रिच वाला तो मिटाना पड़ेगा, डेफिशिएंट वाला बाजू में है, चलेगा, है ना? तो ये डेफिशिएंट है, ये रिच है, तो ये दे सकता है क्या इसको प्रोटॉन? दिस NH4 can donate its proton to Cl minus 1? Yes, very much. It can donate its proton to Cl minus 1 since it is rich in proton and this is deficient in proton. It is in need of proton and this is having excess of proton. So naturally a proton can go to chloride ion and reaction will proceed in reverse direction. When it proceeds in a reverse direction, this NH4 donates a proton. तो बेटा ये क्या बन गया? एसिड। करेक्ट है? और ये एसिड ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो वो कन्वर्ट काय में हो गया? बेस में। यहां तो वही लिखा है हमने, एसिड ने अगर प्रोटॉन डोनेट किया, माइनस लिखा ना मैंने, ये एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये NH4 रिवर्स डायरेक्शन में काय में कन्वर्ट हो गया? बेस में। तो यहां पर
मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूं, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया और काय में कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेट बेस में। अब ये दोनों को एग्जांपल लिख लेते हैं। एसिड रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा है, NH4 पॉजिटिव। कॉन्जुगेट बेस कौन सा बना रिवर्स डायरेक्शन में, अमोनिया। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा, कौन सा एसिड कौन सा बेस। तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं एसिड 1, है ना। ये एसिड 1 की कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस, तो इसको लिखते हैं बेस 1, एसिड 1 बेस 1। और रिवर्स डायरेक्शन में ये एसिड 2 और ये बेस 2। तो ये एसिड 1, ये इसका बेस 1, ये एसिड 2, ये इसका बेस 2। तो आपके पास अब दो पेयर यहां पर तैयार हो गई। एक पेयर बेटा कौन सी बन गई, एसिड 1 बेस 1, एसिड 1 बेस 1 एक कॉन्जुगेट पेयर, और दूसरी कॉन्जुगेट पेयर एसिड 2 बेस 2, ये दूसरी कॉन्जुगेट पेयर। तो हमने यहां पर लिखा HCl एंड Cl माइनस आर कॉन्जुगेट एसिड, एसिड 1 Cl माइनस बेस 1, NH4 पॉजिटिव, acid 2 and NH3 is base 2. This is what we call as conjugate acid base pair, and this phenomena will be explained with the help of Bronsted and Lowry concept. What is that concept? Protonic theory concept, and it says that acids are proton donor and bases are proton acceptor. HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया तो एसिड HCl एसिड हो गया, प्रोटॉन डोनेट किया, लेकिन डोनेट करने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो गया अपनी कॉन्जुगेट बेस में, अपनी कॉन्जुगेट बेस में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये पेयर बन गया। पेयर 1 क्या है, एसिड 1 बेस 1, और पेयर 2 क्या है, एसिड 2 बेस 2। दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। करेक्ट है। एक और एग्जांपल से समझा देते हैं आपको, देखिए कैसे होगा एक्सप्लेनेशन। करेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं HNO3, इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, ये एसिड होगा, क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन, एक्सेप्ट कौन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जिसपे 2 लोन पेयर है, तो ये एसिड 1 हो गया। इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो काय में कन्वर्ट हो गया NO3 -1, तो ये इसका बेस 1 हो गया, एसिड 1 बेस 1, ये पेयर बन गया। अब रिवर्स, अब ये H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बेस हो गया, काय में कन्वर्ट हो गया वो H3O पॉजिटिव में। करेक्ट है। तो ये एक्सेप्ट किया, ये बेस 2। अब रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे आप तो क्या दिखेगा, ये प्रोटॉन रिच, ये डेफिशिएंट इन प्रोटॉन, तो अमीर ने गरीब को देना चाहिए। तो ये देने वाला प्रोटॉन है तो वो बनेगा एसिड, है ना। देने वाला तो भगवान होता है, लेकिन ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड हो गया, प्रोटॉन डोनर, तो ये एसिड 2 बेस 2, ये इसकी दूसरी पेयर हो गई। तो ये सेकंड पेयर और ये बनी इसकी फर्स्ट पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दिस लॉजिक, दिस क्वेश्चन can be asked in your competitive exam or in your board exam also, that we can explain very well this phenomena.
तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता कैसे है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का लॉजिक क्या है। इट इज पॉसिबल बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसमें इट हैज अ डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन। एसिड बेस पेयर में डिफरेंस क्या? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज अ डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ट्रांसफर से ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनेगा आपका। और क्या है यहाँ पर हम बोल सकते हैं, when an acid donates a proton it get converted to its own conjugate base. When acid donates a proton it get converted to its conjugate base, and this is what the conjugate acid base pair we can get from the phenomena of Lowry and Bronsted concept. One more aspect we will see again here, है ना। फिर से एक रिएक्शन, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक के, है ना। पहले तो हमने अरेनियस का एक्सप्लेनेशन पढ़ा थोड़ा सा, अरेनियस थ्योरी। फिर दूसरा हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी पढ़ा। थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। अब फोर्थ पढ़ेंगे हम एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक क्या होता है, उसके लिए आप देखेंगे ये रिएक्शन फिर से एक बार। हाँ जी, क्या मिलना चाहिए प्रोडक्ट? हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, सॉरी क्लोराइड आयन, ओके। तो HCl is an acid. It gives a proton to water and get converted to its conjugate base, acid 1 base 1, और ये क्या हो जाएगा इधर, acid 2 base 2। ये बेस होगा ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो। ये फर्स्ट रिएक्शन। एक सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया NH3 plus H2O। Now ammonia has lone pair of electron, तो अमोनिया क्या करेगा, एक प्रोटॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन विल बी ट्रांसफर, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा अमोनिया। अमोनिया प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर से। When it is accepting a proton from water, water is donating a proton, तो वाटर क्या हो गया, एसिड, है ना। डोनेट कौन कर रहा है, वाटर। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, अमोनिया। तो एसिड, एसिडिक नेचर किसका बनेगा, वाटर का बनेगा, क्योंकि वाटर ने डोनेट किया है अपना प्रोटॉन। तो इट विल गेट इट इज एक्टिंग एज एन एसिड and get converted to hydroxyl ion, करेक्ट है। इसमें से एक H अगर बिटा गया तो क्या मिलेगा अपने को, OH माइनस, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया NH3 ने, तो वो क्या बन गया, NH4 प्लस। तो दिस इज एसिड 1, दिस इज बेस 1, दिस इज एसिड 2, and this will be base 2। हो गया, पेयर बना दिया आपने, एसिड 1
base 1, acid 2, base 2. अब फोकस करो आप ये दोनों रिएक्शन में, वाटर पे फोकस करो. इन फर्स्ट रिएक्शन वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस. इन सेकेंड रिएक्शन वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड. तो ये तो क्या हो गया वाटर के साथ? कभी वाटर एसिड के जैसा एक्ट करता है, कभी वाटर बेस के जैसा एक्ट करता है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अदर सब्सटेंस कि वाटर का बिहेवियर क्या होगा. इफ वाटर इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एन एसिड, it will start acting as a base. If water is allowed to react with ammonia, that is a base, it will start acting as an acid. तो water जो है, ये water जो है, ये देखो आप acid के जैसा भी behave कर रहा है और base के जैसा भी behave कर रहा है. तो any substance which act as an acid and as well as a base is what we call as amphoteric substances. Those substances which can act as an acid as well as base depending on the condition are termed as amphoteric substances. So amphoteric nature of water, that is what we can see, amphoteric nature of water. अगर ये एसिड के जैसा एक्ट करता है और ये H2O बेस के जैसा एक्ट करता है, तो मैं ये दोनों की रिएक्शन भी कर सकता हूं फिर, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, तो ये दोनों रिएक्ट करना चाहिए. और रिएक्ट करेगा तो ये एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन देगा इसको प्रोटॉन दिया तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन और वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सिल आयन में. करेक्ट है? तो प्रोटॉन डोनेट किया एसिड ने और कन्वर्ट हो गया अपने बेस में, तो इसका ये बेस 1, ये इसका एसिड 1. ये H2O ने क्या एक्सेप्ट किया है? प्रोटॉन. तो ये क्या बना? बेस 2. और ये हाइड्रोनियम आयन जो रिच इन प्रोटॉन है, ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा? एसिड 2. तो देखिए, when we react water together, one will act as an acid and another water molecule will act as a base. That means water can act as an acid as well as a base. Hence we call water as a amphoteric substance. Correct? Now let me know more examples of amphoteric substances. तो आप मुझे एम्फोटेरिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल बताएंगे और हम देखेंगे उसको कि कैसे एक्सप्लेन करना है. तो आपने आज अरेनियस थ्योरी देखा, अरेनियस थ्योरी के ड्रॉबैक, शॉर्टकमिंग्स भी देखे आपने, है ना, फेलियर भी देखा उसका. लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी प्रोटॉनिक थ्योरी है, वो उसी का आपने यूज किया तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाया. एक ही रिएक्शन में आपको 2 पेयर एसिड और बेस के मिल रहे हैं और उसी से रिलेटेड अभी हमने क्या पढ़ लिया? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. करेक्ट? वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर. मैंने आपसे पूछ लिया कि और कौन से दूसरे एग्जाम्पल है जो एम्फोटेरिक होंगे. एक सिंपल सी बात है कि एम्फोटेरिक होने के लिए, एम्फोटेरिक, टू बी एन एम्फोटेरिक, it must
हैव हाइड्रोजन, प्रोटॉन होना चाहिए, सो दैट टू डोनेट, है ना, मस्ट हैव H प्लस आयन टू डोनेट, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होना चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, यानी वहां पर कुछ नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए ग्रुप, या फिर लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर रहेगी तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल देखो, HCO3 -1, दिस इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्यों एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, और ये CO3 -1 क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एम्फोटेरिक। और ऐसा ही एक और एग्जांपल, H2SO4 का एक हाइड्रोजन निकाल दो, है ना, ये बना कैसे, H2SO4, इसमें से एक प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो एक प्रोटॉन निकल गया, तो क्या बच गया, वो HSO4 -1। अब ये क्या करेगा, H को डोनेट कर सकता है तो एसिड हो गया, और SO4 -1 है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो डोनेट भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, तो फिर HSO4 ये क्या बन गया, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। करेक्ट है। तो ये काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एक लास्ट थ्योरी हमको पढ़ना है और वो है लेविस थ्योरी, है ना, और ये मॉडर्न थ्योरी है। अब मॉडर्न क्या है, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम मॉडर्न थ्योरी बोल सकते हैं। वैसे तो ये थ्योरी जो है ना, ये 1923 की है, अभी तो ये 2020 चालू है ना, 2020 1923। तो देखो कैसे हो जाएगा, कितने साल हो जाएंगे, है ना, 7 9 1, तो यहाँ से 97, ऑलमोस्ट 97 ईयर्स की बात है पुरानी। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न थियरी है ना। मॉडर्न थियरी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज of acids and bases were explained on the basis of Lewis theory, and Lewis theory is based on electrons। और इलेक्ट्रॉन्स पे तो सारा खेल है हमारा। हम बोलते हैं ना, बॉन्ड बनता कैसे है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल क्रिएट अ कोवेलेंट बॉन्ड। और मॉलिक्यूल ब्रेक कैसे होता है, जब उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो जो भी एक्सप्लेनेशन आज की डेट में चल रहा है वो सब लेविस कॉन्सेप्ट पे है। तो 3 मेजर आपकी थ्योरी है, एक अरेनियस, दूसरी लॉरियन ब्रॉन्स्टेड, और ये तीसरा जो रहेगा लेविस थ्योरी। तो लेविस थ्योरी के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, acids can accept or share pair of electron. They can accept or share pair of electron, and bases can donate or share पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से याद रखने का है ना। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और जैसे कि लॉरियन ब्रॉन्स्टेड को हमने प्रोटॉन थ्योरी बोला, वो प्रोटॉन की बेसिस पे एसिड और बेस को डिफाइन किया था। और लेविस थ्योरी ने डिफाइन कैसे किया बेटा, एसिड्स को डिफाइन किया है, एसिड्स कैन एक्सेप्ट और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
and bases can donate or share pair of electron. तो इसको समझते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आ जाएगा। चलो लिविस थ्योरी के हिसाब से अब यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज लिख लेता हूँ। ये अमोनिया लिखा हमने, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाउ दिस ऑन रिएक्शन विथ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन आएगा कहां से, फ्रॉम एसिड। अब क्या होगा इसमें, ये प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट NH4 positive ion, and this NH4 positive will create, ये क्या करता है, ऐसा बनाता है। ये देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर शेयर कर लेगा हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ में, है ना। दिस विल शेयर द लोन पेयर with proton, and this will get, nitrogen will get a positive charge. As nitrogen is sharing its electron pair with hydrogen, this will create a new type of covalent bond. We call it as coordinate bond. देखिए बाकी 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो 4th बॉन्ड बना जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आ गई, नाइट्रोजन के पास। ये प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन है क्या, जी नहीं, ये तो प्रोटॉन है हाइड्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। लेकिन नाइट्रोजन ने क्या किया, चल भाई बॉन्ड बनाना है, मेरे पास पेयर है, पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ शेयर कर लिया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट्स अ स्पेशल type of covalent bond named as coordinate bond. So this is the Lewis theory, where bases can donate or share pair of electron, acids can accept or share pair of electron. तो ये एसिड हो गया लिविस, और ये अमोनिया, ये क्या हो गया, बेस हो गया अकॉर्डिंग टू लिविस थियरी। आपको हमने अमाइंस चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने देखा था व्हाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट ammonia is a base as it carries a lone pair of electron on nitrogen which it can donate or share with a positively charged species or electron deficient species. अब ये प्रोटॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी proton will share its electron pair with ammonia. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का एक एग्जांपल बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपने पढ़ा होगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों है, क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट थ्योरी पढ़े थे हमने 11th में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ये बोरॉन को देखो ना, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2, ये 3 पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन लेस देन 8। तो ये क्या बन गया आपके लिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इनकम्प्लीट यानी डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। अगर इसको अमोनिया का साथ मिल जाए तो, इसको अमोनिया का साथ मिल जाए तो क्या होगा, अमोनिया के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिच इन इलेक्ट्रॉन, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या यहाँ पर, फिर से ये लोन पेयर नाइट्रोजन किसके साथ शेयर कर लेगा, बोरॉन के साथ। अब बोरॉन के साथ शेयर किया तो कौन सा बॉन्ड बना, नया टाइप का स्पेशल कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना, क्या बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज or positively charged species will create bond with the lone pair of nitrogen. So this is what we say Lewis theory for acids and bases. फिर से एक बार, what is Lewis theory? Lewis theory, according to this, acids can accept or share pair of electron, bases can donate or share pair of electron. So this is what we see. Ammonia is a base. It is sharing electron pair with deficient molecule in complete octet. And in the first example, the base ammonia is reacting with positively charged hydrogen, that is proton, creating a new type of bond known as coordinate bond. Okay? तो ये होगी लेविस थ्योरी। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और वेरियस थ्योरी टू एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस। कल हम कुछ नया पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था, जस्ट उसको इंट्रोड्यूस कर दे, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फाइंड आउट किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब हम एसिड्स और बेसिस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे और उसके बाद एक नया फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस सबको बेटा पढ़ो अच्छे से, ये फंडामेंटल है, आगे सब काम आएंगे। अगर ये समझ गया तो आगे का टॉपिक बहुत इजी होगा। चलिए मिलते हैं फिर।